Okay, so we'll discuss that question only. Where is the question? Okay, this one. I'll share the screen now. Okay, look at the question now. It says Asha Limited manufactures a chemical which passes through 3 processes. The following particulars are gathered for the month of December 2020. Okay, you have got basic materials in all in kgs. ठीक है, आपका जो बेसिक मटेरियल है, it is already given and cost of that basic material is also given. Okay, and it is clearly mentioned that basic material is in kg. Kg means it is in units, and you can see it has been introduced in all the processes. Okay, in process A they have introduced 4000, in process B they have introduced 2080, in process C they have introduced 1772. So they have input in all the process. Okay, so you have to be very careful. This question is little difficult from the other question. Okay, then we have wages as usual, other direct expenses is given, production overhead is also given. Normal loss as usual, it is in terms of percentage. Scrap value is also given per kg. Output transferred to next process is 40% and output transferred to warehouse is 60%. Okay, so in all the cases, some of the output is transferred to next process and some of the output is transferred to warehouse directly for sale. Okay, or for other purpose, we don't know. But all the output is not going to the other process right now. Okay, and one more thing, can you see the output in the question? Tell me fast. Can you see the output in the question? As we used to get in earlier questions, can you guess the output here? Can you see the output in the question? Yes or no? Participate through chat box if you do not want to unmute yourself. Can you see the output in the question? क्या आउटपुट आपके क्वेश्चन में दिया है? क्या आउटपुट आपके क्वेश्चन में दिया है? Yes. दिया है तो बताइए आप मुझे आउटपुट कितना है? सर 40% ना बेटा 40% बोल रहा है आउटपुट ट्रांसफर होगा नेक्स्ट प्रोसेस को. आउटपुट का 40% ट्रांसफर होगा नेक्स्ट प्रोसेस को, आउटपुट का 60% ट्रांसफर होगा वेयरहाउस को. दिस इज द परसेंटेज ऑफ रेशियो which is decided for the next process and warehouse, but this percentage will be calculated on output only ना. आउटपुट का कुछ पार्ट जो है वो नेक्स्ट प्रोसेस में जाएगा, आउटपुट का कुछ पार्ट जो है वो वेयरहाउस में जाएगा, ऐसा ये लोग बोल रहे हैं. ठीक है, बट दे हैव नॉट मेंशन्ड आउटपुट इन द क्वेश्चन. In earlier question we used to get output, but in this question you can see there is no output in the question. They have mentioned that so and so percentage will go to next process, so and so percentage will go to warehouse, but they have not given the output. ठीक है, आउटपुट का कितना परसेंटेज किधर जाएगा वो दिया हुआ है, बट आउटपुट क्वेश्चन में नहीं दिया. ठीक है, एंड इफ देखो आउटपुट दिया होता तो हम लोगों ने 40 और 60% निकाल लिया होता. ठीक है, सो लाइफ वाज इजी देन, लेकिन यहाँ पर आउटपुट नहीं दिया. ठीक है, एक चीज आप याद रखेंगे, व्हेन देयर इज नो आउटपुट, एकदम अंडरलाइन कर लेना मेरी बात को, व्हेन देयर इज नो आउटपुट देयर इज नो एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन. याद रहेगा, व्हेन देयर इज नो आउटपुट देयर इज नो एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस. एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन कभी नहीं होगा अगर आपके क्वेश्चन में आउटपुट नहीं है तो. ठीक है,
योर नॉर्मल आउटपुट विल बी इक्वल टू आउटपुट ओनली, है ना। हमेशा हम लोग नॉर्मल आउटपुट को कंपेयर करते हैं ना एक्चुअल आउटपुट से, बट एक्चुअल आउटपुट आपके क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है, इसलिए नॉर्मल आउटपुट ही क्या हो जाएगा, आपका एक्चुअल आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। दिस क्वेश्चन व्हेन यू सॉल्व इट, इट बिकम्स इजी, so we will solve and we will learn how to do it. Okay, I will take the format from here. I will take the differentiate altogether. Okay, this is going to be our process A. Like that, I am going to copy and paste below. This is going to be our process B, and this is going to be our process C. Okay. Okay. Now next, what is given? Basic material. So we'll start with here. Basic material. In units they have given, you can see in units, in kg they have given. Okay, so in unit part you can write kg. Okay, kg is a unit, right? Kilogram. So I will write it everywhere. What is there in the chat box? Okay, good. So it is 4,000 and amount is 384. 4,000 is also there and amount is also there, 384. Okay, so this is done. Next is wages. So I will be writing it down. Wages, it is 76,800. Then next is direct expenses. The amount is 84,000. Then there is production overhead. It is 25,600. Now, as usual, we will move on to the right side and we will write to normal loss, which is given in terms of percentage, and you know percentage is calculated on input. It is 5%. And 4,000 ka 5% is 200. And you know how to calculate the amount part. It is 200 multiplied by the scrap value, that is 2 per kg. So it is going to be 400. Okay. This is what we have been following. Very good. Parveen is saying 160. Why? Is there anything else I missed? It is 5%. It says no, na. Sir, 4%. No, beta, 4% is for process B, na. Got it? For process A, it is 5%. For process B, it is 4%. Is this correct? I can see 4% only in process A. In process B, in process A, I can see 5%. In process B, I can see 4%, and in process C, it is 5%. Okay. Okay. Jayashri is saying, sir, 400 कैसे आया? Okay. 400 आपको आएगा. See, normal loss कितना दिया है? आपका 5%, and it is calculated on this. Now,
हाउ टू कैलकुलेट अमाउंट, यू नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय द स्क्रैप वैल्यू। आप स्क्रैप वैल्यू से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, एंड व्हाट इज द स्क्रैप वैल्यू ओवर हियर, इट इज 2 पर केजी। ठीक है, so when you multiply by scrap value you will get the amount. so simple, आपके पास 200 का स्क्रैप है, 1 केजी का मतलब 200 केजी का स्क्रैप है आपके पास, 1 केजी बेचने पे आपको 2 रुपए मिलते हैं, तो 200 बेचने पे कितना मिलेगा, तो इट इज सिंपल एज 400। गॉट इट? टिल हियर नो डाउट? ओके, गॉट इट। So ये एक common process था, we have been following it in all the process, we will be following the same thing. Okay, now we will be moving forward. Okay, now it says calculate the output. How you will calculate the output? Tell me what is the normal output. You will say sir 4000 था, हमने इनपुट किया था, जिसमें से 200 का सर लॉस हो गया। सो आइडियली हम लोग को कितना मिलना चाहिए सर, हम लोग को मिलना चाहिए 3800 मिलना चाहिए। दैट इज कॉल्ड नॉर्मल आउटपुट। इज दिस करेक्ट? आउट ऑफ 4000 200 इज अ नॉर्मल लॉस, सो 3800 विल बी योर नॉर्मल आउटपुट। ठीक है, नाउ ये नॉर्मल आउटपुट को वो क्या बोल रहा है कि आप इसको ब्रेक करो 2 पार्ट में, आप इसको 2 पार्ट में ब्रेक करो। ठीक है, कौन से 2 पार्ट में ब्रेक करो? एक पार्ट जाना चाहिए टू नेक्स्ट प्रोसेस, मतलब टू प्रोसेस बी में जाना चाहिए, और एक पार्ट किधर पे जाना चाहिए, टू वेयर हाउस में जाना चाहिए। तो कितना प्रोसेस बी में जाएगा बेटा? इट सेज के प्रोसेस बी में जाना चाहिए 40%। कितना प्रोसेस वेयर हाउस में जाएगा, तो इट बिकम्स 60%। कितना आउटपुट है? 3800। आउटपुट कहां से आया? इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस। क्वेश्चन में नहीं दिया है आउटपुट। ठीक है, सो आई विल कैलकुलेट। लिख देता हूं, अदरवाइज आप लोग सोचते रहेंगे आया कहां से। ठीक है, so my normal output now becomes actual output. ठीक है, 3800 का 40% एंड 3800 का 60%. Okay, correct, very good. See who all are participating. Oh, सॉरी, नेहा ने सही आइडेंटिफाई किया है कि हमने यहाँ पे 2 लिख दिया है। ठीक है, सो इट शुड बी बाय ना। ओके, ठीक है, now see who all are participating. Apart from Neha, we have Khan Muskan, and this name is not, Farheen is there, Banita is there, Parveen is there. Okay, very good. Okay, so now how to calculate the amount part, and you know for that part we need to calculate the weighted average cost, है ना? वेटेड एवरेज कॉस्ट आपको चाहिए, एंड कैलकुलेट करने का तरीका भी आपको पता है। ऊपर आएगा अमाउंट वाला पार्ट, 384 प्लस 76800 प्लस 84,000 प्लस 25600 माइनस यहाँ से 400 है अमाउंट में, वो आप माइनस कर देंगे नॉर्मल लॉस।
Down it is going to be 40,000 minus 200. So this 40,000 minus this 200. So now here it is going to be sorry. Okay, and down it is going to be 39,800. Sorry, ना था 4 okay 40 नहीं 4 है. So it is going to be 3,800, 3,800. Okay, and formula was there, so it is already calculated. If not also, आप इसको इससे divide करेंगे and you will get 150. So got it? Correct. Farheen correct है. मुस्कान correct. Got it. ठीक है? Okay. Now this 150 will be used here. 1520 multiply by 150, and here it is 2280 multiplied by 150, and now it is going to tally. Okay, very good, Muskan, Farheen. Got it, guys? Is there any doubt, any question, any concern? Till here, any doubt, any question, any concern? एंड ये प्रोसेस के बाद आगे जाने के बाद बेटा ये प्रोसेस का क्वेश्चन मत पूछे, ये कहाँ से आया वो कहाँ से आया, ऐसे मत पूछो. ठीक है, जब है वो when you are learning it then only ask. No? ठीक है, so we are moving on an assumption that no doubt is there. Now this thing which was transferred to process B will be transferred to process B first to process A, to transfer from process A, है ना, इस तरह से लिखा जाता है, to transfer from process A. ठीक है, सबसे पहले लिखा जाएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट, अभी प्रोसेस बी का जितना भी क्वेश्चन में दिया है सब लिखो. दैट इज उसका मटेरियल, उसका वेजेस, उसके एक्सपेंसेस सब. ठीक है, सो फर्स्ट इज टू बेसिक मटेरियल, टू वेजेस. अच्छा, ऊपर से कॉपी कर लेंगे, इज बेटर ना. ओके, बेसिक मटेरियल में यूनिट भी है और अमाउंट भी है. दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट, जहां पर आपके पास हर प्रोसेस में इनपुट अलग से आ रहा है और लास्ट प्रोसेस से ट्रांसफर हो रहा है वो भी अलग. ठीक है, 76,000, 88,000, 42,512. ओके, गॉट इट. ये हो गया. एज यूजुअल वी विल मूव ऑन द राइट साइड by normal loss, which will be calculated on this tool. याद रखो यहाँ पे दो इनपुट है, एक लास्ट प्रोसेस से आया है वो और एक हमने इस प्रोसेस में इंट्रोड्यूस किया है वो. सो टोटल बिकम्स
1520 plus 2080, that is 3600। ठीक है, गलती नहीं करना है। ठीक है, 1520 प्लस 2080 का हमने निकाला परसेंटेज, दैट इज 4%। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस में भी ऐसे ही होगा, आपके पास दो इनपुट होंगे। सो हाउ मच इट इज, 3600 का 4% इज गोइंग टू बी 144। ओके, एंड ये तो स्क्रैप से मल्टीप्लाई करके आपको मिल जाएगा। 144 multiply by scrap value for B is 3. Okay, for B it is 3, so amount comes to 432. Okay, very good. Muskan is participating a lot. Banita, yes, correct. Jayashri, very good beta. Okay, so you got it. Next is आपको कैलकुलेट करना है नॉर्मल आउटपुट, और वो मैंने आपको कैलकुलेट करना सिखाया है। द टोटल इज 3600, द टोटल इज 3600, एंड व्हेन यू डिडक्ट 3600 में से आपका जो लॉस है 144 जब आप निकालते हैं, सो यू हैव आउटपुट एज 3456। ठीक है, विच विल बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। one will be going to process C and one will be going to process, sorry, one will be going to warehouse। ठीक है, जो भी आपके क्वेश्चन में दिया है उस डायरेक्शन पे 50-50 इट सेज। ठीक है, सो 3456 का 50%। सेम नीचे भी है, मैंने हाफ हाफ डिवाइड कर देना है इनको। ठीक है, 50-50% मैंने नॉर्मल आउटपुट का निकाल लिया है। ठीक है, कहीं तो भी आप मेंशन करके रख लो बेटा, ना तो भूल जाओगे बाद में कि नॉर्मल आउटपुट आया कैसे। नॉर्मल आउटपुट इज इक्वल टू एक्चुअल आउटपुट। ठीक है, अगर क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है तो योर नॉर्मल आउटपुट बिकम्स योर एक्चुअल आउटपुट, विच इज 4000 माइनस 200, जो कि प्रीवियस वाले प्रोसेस में था। ठीक है, वैसे ही मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ सेम तरीके से नीचे, सो दैट आपके पास आइडिया रहना चाहिए कि क्या है ये, व्हाट इज दिस। Tanalakshmi and why so? Okay, then कैसे कैलकुलेट किया आपने नॉर्मल आउटपुट, मैं यहाँ पे उसका प्रोसेस आपको बता देता हूँ। ठीक है, सो दैट यू शुड नो कि कहाँ से आपका नॉर्मल आउटपुट आया। कितना आया था, 3456। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे बता दिया नॉर्मल आउटपुट इज इक्वल टू एक्चुअल आउटपुट। नॉर्मल आउटपुट ऑब्जेक्टिव्स में भी बेटा पूछा जाता है, नॉर्मल आउटपुट कैलकुलेट करो। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। प्रोसेस कॉस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रैक्टिकल नॉलेज, मीन्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि प्रैक्टिकली हाउ टू कैलकुलेट नॉर्मल आउटपुट, हाउ टू कैलकुलेट नॉर्मल लॉस। ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट एबनॉर्मल गेन, हाउ टू कैलकुलेट एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, दिस ऑल विल बी कमिंग इफ इट इज ऑब्जेक्टिव। हाँ, याद रखो। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव होगा तो आपको एक सिंपल प्रोसेस बोल के आपको बोलेगा कि आप कॉस्ट पर यूनिट मालूम करो, दैट इज वेटेड एवरेज कॉस्ट पर यूनिट मालूम करो, लाइक दैट दे कैन आस्क। ठीक है, प्रोसेस आता है एग्जाम में। ओके, सो बनीता इज फॉरवर्ड नाउ, उसने आगे का भी कैलकुलेट कर लिया है। सो
मैं यहां से पूरा फॉर्मेट कॉपी कर लेता हूं एंड 2,28,000 प्लस 1,88,000 प्लस 76,000 प्लस 88,000 प्लस 42512 माइनस यहाँ पे आप देखेंगे 432 है, ठीक है। नीचे आप देखेंगे तो 1520 प्लस 2080 माइनस 144, ठीक है। यहाँ पर आंसर क्या आता है? आई नो चैट बॉक्स में आप लोगों ने आंसर लिखा हुआ है, okay, it is 180. so let's see who all are participating. मुस्कान ने बहुत पहले ही आंसर बता दिया था 180 होगा, then Safa is also correct, Vanita is correct, Muskan is correct, very good. Khan Safa, Vanita, Muskan, very good. Parveen, ठीक है, these are usual names, so they usually participate. Okay, so you know how this amount will come. कितनी मेहनत किया है 180 मालूम करने के लिए, तो 180 से ही मल्टीप्लाई करके मालूम कर लेंगे, ठीक है। नाउ टोटल कर लो, इट विल टैली। You guys are very bad at yourself muting, unmuting. While joining, you should mute yourself properly. Okay, got it. Will you be able to do the last process? I am going to take the attendance now, and you know the rule of taking attendance. You need to be in order. See, most of the students have already learned. They have changed their setting itself. बेटा 16 नहीं होता, 016 होता है, मैं सही करता हूँ। And there should not be any special character, ठीक है। From here, Sardar Nausheen, शहनाज पटेल, गुप्ता दीपांजलि, गुप्ता काजल, खान सुफियान, किशन प्रजापति ने तो रोल नंबर ही लिखा नहीं, लक्ष्मी विश्वकर्मा, नमीरा शेख, साबिरा अकबर अली, ठीक है, रूपाली इज करेक्ट, उसने बराबर किया है। बाकी ये कुछ लोग जो हैं 8 लोगों ने, 7-8 लोगों ने, योर रोल नंबर शुड बी एट फर्स्ट। आपका पहले रोल नंबर होना चाहिए 3 डिजिट का। क्या करना है, पार्टिसिपेंट में जाना है, अपने नाम पे प्रेस करके रखना है, रीनेम का ऑप्शन आएगा, ठीक है, 3 डिजिट का रोल नंबर डालना है। इफ इट इज 44 इट शुड बी 044, if it is 46 it should be 046, if it is 21 it should be 021, not at the end, it should be at the beginning. Sufyan, प्रजापति, किशन, लक्ष्मी विश्वकर्मा, आप लोग करेक्ट करो, काजल, गुप्ता आप भी करेक्ट करो, ठीक है, कैफुद्दीन ने करेक्ट कर लिया है, ठीक है। इफ दे आर नॉट डूइंग आई विल हैव टू डू इट, देयर इज नो अदर ऑप्शन। And those who are not mentioning their roll number, I can't do anything. And see, daily basis pe we are wasting time on this only. How to rename yourself? See, you guys are not capable to rename yourself properly. What you will do? मैंने बोला आपका जैसे ही लेक्चर खत्म होगा, आप सेटिंग में जाके एक ही बार में चेंज कर दो, ठीक है, बस। इट इज सो सिंपल, मेकिंग इट सो कॉम्प्लिकेटेड। ओके
ठीक है. Now I have renamed everyone. Now nobody will ask anything in the chat box कि हमारा रोल नंबर ये है. साबिरा ने अपना रोल नंबर नहीं लिखा है. आई एम सॉरी, आपको चैट बॉक्स में डालना पड़ेगा. आई डू नॉट नो योर रोल नंबर. Attendance of 850. Okay, so ये वापस से चेंज क्यों हो गया परदेसी का? फिर मैंने अभी चेंज किया था ये सब. आप लोग बार बार मूवमेंट करते रहते हो. ओके, नो प्रॉब्लम. शुरू में 103 कहाँ से आ गई? बड़ा टेंशन है. ओके, सो फर्स्ट वी हैव 103 लक्ष्मी. एंड नाउ हमारा स्टार्ट होता है रोल नंबर 13, 15, 16, 21, 22, 26, 33, 35, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 51, 44, 46, 50, 51, and then starts 52, 58, 64, 74, 64, 74, 85, 86, 89, 94, 95, 89, 94, 95, 97, 100, 101, 102, 103. These students are very good. 100 and 100, 101, 102, 103 was already there. So 109, 114, 116, 18, 121, 122, 123, 130, 133, 134, 135, 130, 130, 3, 4, 5, 138, 140, 145, 152, 156, 162, 165, 168, 169, 170 is also there, 171, 173, 188, 189, 194 and 198, and Kishan is also there. Acha, some of them are there. One that is 48 roll number is there. 28 roll number is there. 17 roll number is there, and 86 is there. 86 was already there. No? 99. 99 roll number is only not there. मुस्तकीम, आप बात कीजिए अपने क्लास टीचर से. आपका रोल नंबर नहीं है अटेंडेंस में. ओके, व्हाट इज देयर इन द चैट बॉक्स? 101, 102 तो मैंने मार्क किया, मुझे याद है.
आई थिंक 21 भी मैंने मार्क कर लिया, आप लोग सुनते नहीं। तो मैं रोल नंबर 48 भी क्या 17 17 या 100 एंड अच्छा 17 बेटा मार्क किया ना मुस्तकीम। सर आप बोले बात करने टीचर से। 99 था किसी का तो तुम्हारा पता नहीं, छोड़ो। नहीं मैंने किधर देखा 99 कहीं पे। लीव इट, तुम्हारा मार्क कर लिया मैंने। और कौन है? अच्छा 180 इज देयर, ओके ओके, दे आर सिटिंग टुगेदर। 180 180 आई मिस्ड, ओके। 117 116 का क्या इशू है? आई डोंट नो, मैंने मार्क किया है और मैंने कॉल भी किया है ना। अच्छा 117 116 ऑलरेडी डन, 180 इज डन, 99 इज डन। सर मैंने तो 75, ओके 75, ओके 123 is there, okay 123 is present already, okay, so I think no one is missing. Hey, 121 122 123 all are present. 58, what is the problem with 58 is also present? Why are you guys putting in the chat box? मैं confirm कर रहा हूँ अभी। This was process without output. Process done. अभी हो गया, अभी किसी का मार्क नहीं होगा, ठीक है। Stop sharing कर रहा हूँ मैं, and I will forward this one. Whatever is completed, I will forward it to you. This I don't know the question number. Question number is 18. Question number 18. Okay. Process C will be completed by you only. Yesterday, only Farheen and one more girl. Only these two girls submitted. I don't know the name of the other girl because she didn't mention it on the WhatsApp. But two girls have sent it to me. Process C will be prepared by you only.